Hello everyone. Today we will discuss the rest of the sheet metal workbench. Uh, we covered some portion in a previous video of the sheet metal. So let's we see rest of the sheet metal portion. So for a sheet metal, just go to part and select OK and go with the sheet metal tabs. Sometime it's be there on a sketch feature surface. For a sheet metal, select a sheet metal tab, and here first we have to create a base. So before going to start, just show all the planes and go with the base. Select base and plane on which you want to create a feature. Simply I'm going to select rectangle here and exit sketch, और उसको मैं थिकनेस डिफाइन कर देता हूँ अभी सब 1 mm, राइट. Okay. And in a previous video we covered the corner option, right. Now first of all we will discuss sheet metal gusset, right. So what is the sheet metal gusset? Basically it is used for to increasing the strength of the part. So how does it work? For suppose we have an edge here like this. Suppose करो this is the flange just I created now. Okay, so for a sheet metal gusset, just go here and for creating a sheet metal gusset we need to define a face. Which face? Supporting face. So just select it. This is the first face and this is the second one. The main purpose of the sheet metal gusset is increase the strength of the part. Look, we have a two flange here. This is the base and this is the flange. अगर हमको उसका क्या स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना है, फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे गैसेट यूज कर सकते हैं, राइट. सो हाउ? जस्ट सेलेक्ट द फेसेस वेयर यू वांट टू अप्लाई गैसेट. अभी मैंने ये वाला फेस और इस वाले फेस को सिलेक्ट किया है. नाउ अगेन option for offset option. By using a offset you can place it where you want to place, right, like this. Suppose keep 0, it's on a one end. If you keep 100 here, it's on a middle one, like this. आप उसको कितना मूव कराना चाहते हो आप उसको मूव करा सकते हो, मीन्स आप उसको पोजीशन डिफाइन कर सकते हो, राइट. देन this is the profile for a gusset. So first option is here indent depth. Indent depth here just I'm going to change by 20. So all the parameter of the gusset change. It's all depend on a indent depth. अगर मैं indent depth को change करता हूँ by default other parameter get change. If you want to make a change individually, then go with the profile dimension here. Just go here. This is a D1, D2. You can see here D1 क्या bottom one length रहेगा, vertical length is a D2 है. The angle between D1 and this linear this hypotenuse face is a angle A1, right. This one, the angle between this face to this one, this is the A1 angle, right. You can see here. So अभी मैं डिफाइन करता हूँ D1 इसमें डालो 30 या I'm going to change by 50.
लाइक दिस। तो उसका हाइट चेंज हो रहा है। जैसे मैं D2 को चेंज करता हूँ 30, तो नीचे वाला फेस चेंज होगा 40 लाइक दिस। आप इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज अगर हम इंडेंट डेप्थ को चेंज करते हैं तो सभी पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो सभी बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएंगे। एंगल एक्टिवेट करता हूँ, एंगल डिफाइन करना है 45 का एंगल हो जाएगा। एंड फ्लिप साइड, यू कैन फ्लिप दिस साइड। सो हाउ, सपोज करो D2 को मैं करता हूँ 30, मीन्स जो नीचे वाला डिस्टेंस इज 30 एंड वर्टिकल इज 50। अगर मेरे को उसको फ्लिप करना है, यू कैन फ्लिप इट right like this. Now there is a two shape for a sheet metal gusset, round shape, that is already defined here. This is the round shape of the gusset. Next one is a flat gusset like this. This is the flat shape for a gusset, right? And here edge fillet, if you want to add a fillet on the edge, just activate it, और आप एज फिलेट भी डिफाइन कर सकते हो। सपोज 2 का डाल देता हूँ, राइट। दिस इज द एज फिलेट। एंड नेक्स्ट वन इज द इंडेंट विड्थ, विड्थ ऑफ दिस वन, दिस विड्थ राउंड में डिफाइन करता हूँ उसको, इंडेंट विड्थ डाल देता हूँ 8। दिस इज द विड्थ ऑफ द गैसेट। थिकनेस बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा। इफ यू वांट टू ऐड ऑन एंगल, देन activate it and you can define the angle value 3 like this, angle of the gusset, right? So 5 किया तो कुछ ऐसा visible हो जाएगा like this, right? And there is a option for a corner fillet, inner and outer, means this activate किया है 1, outer को भी 1, दोनों को डिफाइन कर देता 2 एंड 2। मिस इनर एंड आउटर कौन सा रहने वाला है, मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको ड्राफ्ट को लाइक दिस, एंड ओके कर देता हूँ। तो कुछ ऐसे विजिबल होगा। देखो वो ये जो है आउटर रेडियस है, आउटर फिलेट है, आउटर कॉर्नर है। जो इनसाइड में हमको विजिबल रहेगा वो इनर। कैसे, अभी शो करेंगे आपको। अगर देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला, ओके किया, सी ये इनर वाला रहेगा, अंदर में जो रहेगा विजिबल, ठीक है ना, ये सब इनर वाला रहेगा, राइट। एंड ये है आउटर, आउटर फिलेट, ओके। देन नेक्स्ट है, दिस इज द टाइप ऑफ द शीट मेटल गससेट, राइट, ओके। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, मींस अगर हम इसको हैवी लोड एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं इस पोर्शन को, तो ये बैंड हो सकता है इधर से, या फिर ये ऊपर से ऐसे बैंड हो सकता है। अगर ये ऐसा रहेगा तो ये बैंड हो सकता है, ये वाला हमारा प्लेट। तो अभी दोनों के बीच में हमने क्या, एक गससेट ऐड किया, मीन्स वो दोनों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट। दिस इज द शीट मेटल गससेट। ओके, नेक्स्ट अब इसको डिलीट कर देता हूं मैं। नेक्स्ट है वेंट, सॉरी अभी हम ओके, हम फर्स्ट पहले कर लेते हैं वेंट को। अब वेंट को देखते हैं। वेंट का जो मेन पर्पस है फॉर अ वेंटिलेशन, ओके। जैसे हमने देखा होगा कि सीपीयू जो होता है हमारा कंप्यूटर का सीपीयू, उसमें हम देखते हैं कि जो फैन के आगे वेंटिलेशन के लिए जो कटिंग की जाती है या फिर अदर पर्पज़ के लिए आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है वहाँ पर, तो उसके लिए हम मेटल में अगर हमको वेंटिलेशन देना तो हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी कमांड है और बहुत अच्छे से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो हाउ इट वर्क, पहले हमको वेंट के लिए हमको 2D स्केच क्रिएट करना पड़ेगा। सो हाउ, जस्ट गो टू स्केच एंड मैं स्पेस के ऊपर 2D स्केच क्रिएट कर लेता हूँ, राइट, ओके। फॉर पहले मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पे लाइक दिस। आप कोई भी शेप बना सकते हो, इट्स ऑन यू। अगर आपके डायग्राम में जो शेप रहेगा आप वो क्रिएट कर सकते हैं।
अभी मैं रैंडमली कोई भी शेप ले रहा हूँ, ओके। ओके ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ ऐसे, राइट। अगेन मैं यहाँ से जाता हूँ, और यहाँ से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। देन मैं इसको इधर से इधर ज्वाइन कर देता हूँ। एंड अगेन यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता हूँ, थोड़ा एंगल पे आती है लाइन, इसको डिलीट करके अगेन मैं क्रिएट कर देता हूँ लाइक दिस, ओके। अभी मैं इसको ट्रिम करता हूँ, जो मेरे को नहीं चाहिए, मैं अंदर का कुछ भी नहीं चाहता यहाँ पे, लाइक दिस, इसको मैंने ट्रिम किया है, ओके। देन अभी मेरे को यही शेप क्रिएट करना है, इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो कि मेरे को कुछ ऐसे डिफाइन करना है यहाँ पे ऐसे, ओके। अभी ट्रिम कर देता हूँ बाहर का जो भी है, मैं यहाँ पे चैम्फर डाल रहा हूँ ऐसे। अभी विदाउट डायमेंशन इसको क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कोई भी डायमेंशन यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसको कर देता हूँ मिरर, इस लाइन को अबाउट this axis, okay, and similarly इन दोनों को इसको और इसको मिरर कर देते हैं हम, ओके। यहाँ पे एक्सिस नहीं है हमारे पास, तो मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। मिरर इसको अबाउट दिस मिरर लाइन, ओके। और इधर से इसको ट्रिम कर देता हूँ मैं, कुछ मैंने इसको ऐसे रिमूव किया है, और इसको मैं कर देता हूँ रेफरेंस में, मीन्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन, ओके, राइट। कुछ मैंने इसको ऐसे बना लिया है। देन अभी मैं एग्जिट कर देता हूँ इसको, यहाँ से एग्जिट। अभी ये मैंने स्केच बनाया, मैं कुछ इस शेप का वेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। देन गो टू शीट मेटल एंड select vent here. First it's asking for a boundary, so select the outer boundary of the sketch. For a boundary, select the outer boundary of the sketch. मैं अभी outer boundary को select कर लेता हूँ like this, okay। जैसे हम outer boundary को select करते हैं, so it will remove the inside sheet metal from the inside of the boundary, means उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, राइट। बट अभी हमको यहाँ पे डिफाइन करना है, वी हैव ऑप्शन फॉर रिब्स एंड स्पार्स, ओके। आप रिब्स एंड स्पार्स का आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, मीन्स क्या, जो सर्कुलर पोर्शन है, जितना भी सर्कुलर स्केच है, मैं उसको रिब्स में ले लेता हूँ, और जो भी मेरा लाइन्स है उसको मैं स्पार्स में लूँगा। मिक्स नहीं करना उनको, सर्कुलर रिस्पोर्टेबल मैं रिब्स में ले रहा हूँ, तो सभी को मैं रिब्स में सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, और वैल्यू डिफाइन करता हूँ 3। एंड फॉर स्पार्स मैं ये वर्टिकल
लाइन को ऐसे, या सॉरी इस लीनियर लाइंस को मैं सिलेक्ट करूँगा। इट्स नॉट अ वर्टिकल सा लीनियर लाइन, मैंने उसको ऐसे सिलेक्ट किया है। उसके लिए आप कितना वैल्यू देना चाहते हो उसका थिकनेस डिफाइन कर सकते हो। इसका लेता हूँ 2, ओके, ये मैंने 2 डिफाइन किया ऐसे। एंड अगर आपको ओके करना है ओके कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल इन बाउंड्री, दिस वन मोर ऑप्शन, फिल इन अ बाउंड्री। सपोज करो मैं इस वाले सर्कल को क्लोज करना चाहता हूँ, यहाँ पे ओपनिंग नहीं छोड़ना चाहता। आई डोंट वांट एनी ओपनिंग हेयर, just go here, fill in a boundary and select the circular sketch, this one. What's going on there? Clear it. I think there is a sketch. Circular portion for a second. Okay, this is the third one. Okay, now fill in a boundary, select this boundary like this. Okay, तो वो फिल हो जाएगी। उस स्केच को सिलेक्ट करना है अंदर वाले को, और जैसे उसको सिलेक्ट किया तो वो फिल हो गया देखो लाइक दिस। ओके, दिस इज द वेंट ऑप्शन। इस वैसे ओपनिंग क्रिएट करेगा वो। जस्ट क्लिक ऑन ओके, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपनिंग क्रिएट हो जाएगा। जो आपने स्केच क्रिएट किया उसी शेप में हम यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं। हमने देखा भी होगा जो सीपीयू रहते हैं, और सीपीयू का जो फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही ओपनिंग क्रिएट किया होता है। तो उस टाइप से आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो उसको, राइट। ओके, देयर इज वन मोर ऑप्शन, जैसा रेडियस। अगर आपको रेडियस भी ऐड करना है, सपोज करो 3 का रेडियस डाल देता हूँ मैं। देखो सभी साइड्स में यहाँ पे रेडियस भी आ जाएगा। ऐसे 2 का डाल देता हूँ तो 2 का रेडियस आ जाएगा। जितने भी यहाँ पर कॉर्नर रहेंगे सबको रेडियस भी ऐड हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रेडियस ऐड हो चुका है, वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऐसे। ओके, दिस इज द वेंट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई डाउट रहता है तो जरूर पूछना इसके लिए भी, राइट। वो मैं क्लियर करता हूँ फिर। एंड नेक्स्ट है सिंपल होल। सिंपल होल मीन्स जस्ट सर्कुलर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। सिंपल होल मीन्स सर्कुलर होल। जस्ट क्लिक ऑन इट, सिलेक्ट ए लोकेशन, जहाँ पे आप उसको डिफाइन करना चाहते हो वो लोकेशन को डिफाइन करेंगे। और जो को यहाँ पे डायमीटर डिफाइन करना है, कितना डायमीटर चाहिए, उसको डेप्थ चाहिए कितना, तो आप जस्ट होल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मीन्स एक होलो कट आपको निकालना है, होलो प्रोफाइल से कट करना है, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। दैट्स अ सिंपल होल। एंड इन द टॉप साइड ऑफ द सिंपल होल हैव ए ऑप्शन फॉर अ एक्सट्रूड कट। मीन्स वी ऑलरेडी नो अबाउट, आई थिंक you must know about this is the extrude cut. What is it? मीन्स कोई भी प्रोफाइल आप निकालोगे उस शेप में वो वहाँ से कट करेगा। मीन्स इट्स अ कटिंग ऑपरेशन, वी कैन से इट इज अ कटिंग ऑपरेशन इन अ शीट मेटल लाइक दिस। अभी मेरे को कट करना है, जो भी प्रोफाइल निकालते हैं एग्जिट, और किसके लिए जाने का, एक्सट्रूड कट के लिए, उस शेप में वो कट करेगा उसको। इट्स अ सिंपल स्केच निकालेंगे, जो भी शेप में कट करना है, और एक्सट्रूड कट के लिए जाएंगे। सर्कुलर हो कट करना है या होल क्रिएट करना है तो सिंपल होल के लिए। अदरवाइज आप सर्कल स्केच बना करके सर्कुलर, आप एक्सट्रूड कट से भी सर्कुलर कट कर सकते हो, राइट। एंड जस्ट डिलीट इट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज अ फॉर्मिंग टूल। व्हाट इज इट? It's a forming tool. Forming tool. What is a forming tool? If you want to add some stamping operation here,
For that, you can use a forming tool here, and we have this forming tool is used for to add any shape of a stamping and punching in a design library. There is some other shape of the forming tool that already in a design library. Just go here in a design library and look for a design. In design library, again go to a design library. Here have the option for a forming tool. And a forming tool, we have a different type of shapes like emboss and extrude flange, lenses. There are a different type of forming shapes here, and if you want to add on their own, yeah, any other forming shape here, just draw any shape, and by using a forming tool you can add in a design library, right? Okay, in a design library, go to forming tool, spore, just go here for embossing, and here we have a different type of shape, circular emboss, counter sunk, dimple. ओके अभी मैं क्या करता हूँ, सर्कुलर एम्बोस को यूज़ करता हूँ. जस्ट ड्रैग इट एंड प्लेस वेयर यू वांट इट लाइक दिस. ओके, तो उसी शेप में वो वहाँ से डिफॉर्म हो जाएगा, राइट. ऑल दीज आर द स्टैंपिंग ऑपरेशन, राइट. अगर आपको अपना ही कुछ शेप बना करके ऐड करना है डिज़ाइन लाइब्रेरी में, तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिंग टूल यू कैन ऐड. अदरवाइज देयर इज अ प्री डिफाइंड शेप्स लाइक काउंटर सिंकिंग बोल, जस्ट ड्रैग करो और उसको प्लेस करो कहाँ पर उसको प्लेस करना है, लाइक दिस, वो ऐड हो जाएंगे. ओके, एंड यहाँ पे एक्सट्रूड फ्लैंज में जाता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट शेप मिलेगी. लूवर्स में जाता हूँ, तो कोई लूवर्स का शेप है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लाइक दिस. लूवर्स का मोस्टली यूज जैसे माइक्रोवेव, कूलिंग, रेफ्रिजरेटर, तो जो स्मॉल पर्पस हीटिंग एंड कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं. कमर्शियल यूज में जो यूज होता है मोस्टली, या माइक्रोवेव हो जाता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है लेंस का. सो आप उसको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हो. ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन भी है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो. अभी देखो कैसे होता है. आप इसको कुछ चेंजेस करने हैं, सपोज करो फ्लिप टूल करता हूँ, तो अप साइड में वो क्रिएट हो जाएगा. फ्लिप टूल किया तो डाउनवर्ड साइड में क्रिएट होगा. अगर उसको रोटेट करना है, उसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो. सपोज करो 90 एंगल पर रोटेट करना है, तो ऐसे इसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, राइट. अभी 0 डिफाइन कर देता हूँ ये, एंड ओके. ये सब वेंटिलेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, देखो ऐसे, राइट. लोअर का यूज़ भी वेंटिलेशन के लिए यूज़ करते हैं. अगर आपको इसको खुद से भी बना के रखना है तो वो भी हम कर सकते हैं. कहाँ से यूज़ करना है फॉर्मिंग टूल्स को? डिज़ाइन लाइब्रेरी में. इन अ फॉर्मिंग टूल्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप. रिब्स है, रिब्स को यूज़ करना है. कैसे प्लेस करना है? जस्ट सिलेक्ट एंड ड्रैग, और किस सरफेस के ऊपर उसको प्लेस करना है, जस्ट सिलेक्ट ऑन दैट सरफेस एंड इट विल define like this. कुछ ब्रिज शेप रहेंगे, सी है, इसको जैसे ब्रिज लेंस, इसको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, फ्लिप कर देता हूँ, टॉप साइड में चाहिए, कुछ ऐसे वो क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस. कि माउंटिंग पर्पस के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, जैसे कि हम फैंस वगैरह बिठाते हैं, कुछ भी मदरबोर्ड्स वगैरह को बिठाना है, तो उसको ग्राउंड फ्लोर से कुछ हाइट के ऊपर बिठाते हैं ना, तो उस पर्पज़ के लिए इसको हम क्रिएट करते हैं कि इसके ऊपर में कुछ भी चीज़ें माउंट कर सकते हैं, ताकि नीचे से एयर भी पास हो सकती है. तो कुछ ऐसे डिफरेंट शेप्स रहती हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना. कहाँ पे रहेंगी वो? डिज़ाइन लाइब्रेरी में फॉर्मिंग टूल्स में रहती हैं, ठीक है ना. ओके, ये था कि हमको ऑलरेडी जो डिफाइन है डिज़ाइन लाइब्रेरी में, हम उसको यूज़ करना. अदरवाइज सपोज करो कि
कोई भी शेप होने दो, डिज़ाइन लाइब्रेरी फॉर्मिंग टूल इम्पोज के ले जाता हूँ कि ये शेप है, मेरे को जो लगता है, देखो अब इसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मेरे को उसको चेंज करना है। अगर आप उसमें एडिटिंग करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, जस्ट डबल क्लिक करना है, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, वो ओपन हो जाता है लाइक दिस। डबल क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगा। अभी हमको क्या है, देखो सेम उसका ट्री ओपन हो जाएगा यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू एडिट, मेक ए चेंज, देन यू कैन चेंज। कैसे इसको चेंज करना है, स्केच में चेंज करना है, उसके डायमीटर छोटा करना है, कर सकते हो, राइट। सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, वो सब आप उसमें एडिटिंग करके अपने अकॉर्डिंग उसको, उसका साइज वगैरह चेंज करना आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको खुद का अपना क्रिएट करके डालना है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का। सपोज करो अपना अगर खुद से फॉर्मिंग टूल बनाना तो कैसे बनाएंगे, पार्ट में जाता हूँ। आप खुद से अपना फॉर्मिंग टूल बनाएंगे भी, मैं इस वाले फेस के ऊपर जाता हूँ, स्केच क्रिएट कर देता हूँ। और उसको डायमेंशन देता हूँ कि ये है 50 का, इधर से डिफाइन कर देता हूँ 8 mm, कुछ मैंने ऐसे डिफाइन किया है इसको, और इसको डाल देता हूँ। इसके साथ कॉन्सिडेंट कर देता हूँ और एक एक्सिस निकाल देता हूँ कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिमेट्री। इस लाइन को, इसको अबाउट दिस लाइन मेक अ सिमेट्री, राइट, वो फुली डिफाइन हो जाएगा। अब इसको करता हूँ एक्सट्रूड, राइट, क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। मैं फॉर्मिंग टूल का शेप क्रिएट करने जा रहा हूँ, राइट, एंड इसको यूज करते हैं हम मिड प्लेन में जा करके, और इसको डिफाइन कर देता हूँ 50, इसको भी लाइक दिस। ओके, अभी मैं यहाँ पे कोई शेप बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर में से एक स्केच बना देता हूँ लाइक दिस, और एक सर्कुलर शेप भी क्रिएट कर देता हूँ मैं, सर्कल। सर्कल के लिए जाता हूँ, एक सर्कुलर शेप यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और डायमीटर ले लेता हूँ उसको मैं 20, राइट। और अभी इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ एंड डिफाइन कर देता हूँ 10, या फिर इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं, ओके 10 ही डिफाइन कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे दूसरा भी मैं स्केच बना देता हूँ, उसके ऊपर अगेन कोई भी सर्कुलर सेकंड सर्कुलर शेप में यहाँ पे बना देता हूँ। इसको डिफाइन कर देता हूँ डायमीटर में 4, ओके, इसको डिफाइन करते हैं 4 से 8 लाइक दिस, एग्जिट, और इसको भी एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं अप टू 8, एडिट, उसको ऐड करते हैं हम अप टू 8 mm, कुछ ऐसे मैंने इसको डिफाइन किया है, राइट। और अभी ऐड करता हूँ फिलेट, गो टू फिलेट, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 2, सिमिलरली इसको भी 2 डिफाइन कर देता हूँ, और इसको नहीं डिफाइन करता एंड इसको डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी इसको नहीं डिफाइन करना, मतलब फेस सिलेक्ट हुआ है, हमको डिफाइन करना है इस एज को, इस एज को, इसको भी सिलेक्ट लाइक दिस, ठीक है। देन ओके, कुछ ऐसे मैंने क्रिएट किया है, और इसको मैं तो थोड़ा एक्सट्रूड को चेंज कर देता हूँ। जो एक्सट्रूड मैंने इंक्रीज किया उसको थोड़ा वैल्यू को कम कर देता हूँ, अप टू 5 कर देता हूँ, या हाँ 4, ऐसे मैंने इसको कम किया। सिमिलरली टॉप वाला भी कम कर देता हूँ एक्सट्रूड को, अकॉर्डिंग टू ये से पैरामीटर आपको डिफाइन करना है। अभी मैं इसको रैंडमली बनाने जा रहा हूँ ऐसे,
ये हमारा शेप है जो मेरे को चाहिए था। और अभी मैं इसको, मेरे को उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैंने सिर्फ उसका फेस डिफाइन करने के लिए, उसका टॉप फेस बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको रिमूव करूँगा, स्केच बनाता हूँ, इसको एक्सट्रूड कट करके रिमूव, कन्वर्ट एंटिटी में, कन्वर्ट एंटिटी किया मीन्स मेरे को पूरा स्केच आ जाएगा, उसका बाउंड्री एग्जिट कर देता हूँ, राइट। देन उसको एक्सट्रूड कट यूज़ कर लेते हैं, उसको थ्रू आउट में कट कर देता हूँ ऐसे, तो यह हमारे पास बच जाएगा, देखो ऐसे। ओके, ये क्या बन चुका है हमारा, जो हमको शेप चाहिए था ये हमको बन चुका है। अभी इसको फॉर्मिंग टूल बनाना है, शीट मेटल में जाता हूँ, यहाँ पे फॉर्मिंग टूल क्रिएट कर देता हूँ, फॉर्मिंग टूल, फॉर्मिंग टूल पे सेलेक्ट करने का। और अभी बोलता है स्टॉपिंग फेस, स्टॉपिंग फेस मीन्स टॉप फेस, मीन्स वो फेस जो आपका टच होने वाला, कनेक्ट होने वाला सीट मेटल से, सीट मेटल प्लेट से, ये मेरे को फेस जो मेटल प्लेट से टच में आएगा। फेस टू रिमूव, अगर आपको नीचे से ओपनिंग चाहिए तो आप फेस टू रिमूव में उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको रिमूव करना है। मेरे को नीचे से इसको ओपन चाहिए, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया फेस टू रिमूव में। स्टॉपिंग फेस रखा है मैंने टॉप, जो कनेक्ट होगा किसके साथ, सीट मेटल फेस के साथ। ओके, लाइक दिस, वो क्रिएट हो चुका है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ 333 से। और अभी इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ कहाँ पर, डिज़ाइन लाइब्रेरी में। गो टू डिज़ाइन लाइब्रेरी एंड हियर हैव ए ऑप्शन फॉर अ डिज़ाइन, ऐड टू लाइब्रेरी, टॉप वन, ऐड टू लाइब्रेरी, जस्ट सेलेक्ट इट। कहाँ पे ऐड करना चाहते हो आप डिफाइन कर सकते हो, फॉर्मिंग टूल में, इम्बोज में ऐड करना है, लेंसेज में, लोअर्स में, रिव्स में, कहाँ पर। अभी मैं उसको इम्बोज में ऐड कर देता हूँ, इम्बोज में। अरे हम बोलते हैं आइटम टू ऐड, सेलेक्ट करेंगे, इस आइटम को ऐड करना है, राइट। वो सिलेक्ट हो चुका 3 के नाम से, देखो, एंड ओके। ओके, अभी इसको करता हूँ कैंसल, अगेन जाता हूँ शीट मेटल के लिए, वो हमारा बन के ऐड हो चुका है। अभी मैं बेस डिफाइन कर देता हूँ, एक प्लेट क्रिएट करता हूँ सिंपल, ओके, एग्जिट। 1 का थिकनेस है, ओके किया। अभी जो हमने क्रिएट किया था, which one the created now, what is the name, okay, so 3 right, you can see this is our forming tool 3 ओके। अभी हमने इसको क्रिएट किया था और अभी इसको हमको प्लेस करना है। नाउ जस्ट सिलेक्ट एंड ड्रैग वेयर यू वांट टू प्लेस, जस्ट प्लेस ऑन अ फेस वेयर यू वांट एंड ओके। देखो वो कुछ ऐसे क्रिएट हो जाएगा। हमने द बॉटम फेस ऑफ दिस फॉर्मिंग हमने फेस टू रिमूव में सिलेक्ट किया था, इसलिए वो रिमूव हो चुका है। एंड दिस इज द स्टॉपिंग फेस, टॉप वन, और वो उसके साथ ऐड हो चुका है, लाइक दिस। यू कैन ऐड एनी शेप बाय यूजिंग अ फॉर्मिंग टूल इन अ डिजाइन लाइब्रेरी एंड यू कैन यूज इट एज पर योर डायग्राम, राइट। दिस इज द वे you can add any forming tool in a design library and you can create any forming tool. Okay, I hope you understand forming tool, sheet metal, extrude cut, simple hole and bend. And next option is just delete it. Going to select edge, I'm going to create flange on edge. Okay, just okay. And there is option for a fold and fold. Unfold करना means we have a sheet metal part. If you want to unfold any flange here, you can unfold by using this one, unfold. Select a fixed face, pause करो. This is our fixed face. And select a bend to unfold. हमको फ्लैंज नहीं सिलेक्ट करना। फॉर अनफोल्डिंग यू नीड टू सिलेक्ट
you have to select band face, this band one. Okay, अगर single one को if you want to unfold only this flange, then you can select this band face. If you want more flange, just select band of the flange, which one you want to unfold. Now currently I want to unfold this one and this one. Just click on OK. These two flange get unfold, right? And now there is a one more option for a fold. If you want to fold, just click on it. Fixed face, which one you want to fold? I want to fold only this one. Just select this band. You can fold it. Means fold and fold. Here we can fold and unfold on your own. Okay. If we have a sheet metal part, उसमें से आपको क्या ओनली स्पेशली अन पर्टिकुलर फ्लैंज को इफ यू वांट टू अनफोल्ड, यू कैन अनफोल्ड एंड फोल्ड by using these two option. And this is a flatten. In flatten, just click. It's not asking about a band and which face you want to keep a fixed face and which one you want to band or unband. It's not asking. Just click on it. ये completely क्या कर देगा, उसको flat बना देगा. This is the flatten option. Okay, all the bending flange, all the bands converted into a flat in a flatten. But in a unfold and fold, you have a choice which one you want to make a bend and which one you want to make a flat, right? In fold and fold we can bend and we can flat on your choice, but in a flatten it completely flat the sheet metal part, right? There is no choice like this. Okay, just delete it. Fold and fold. Okay, आज के लेक्चर में इतना ही करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपका शीट मेटल फिनिश हो जाएगा. ओके, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इट्स द लास्ट वीडियो फॉर अ शीट मेटल, उसमें हम कंप्लीट करेंगे शीट मेटल को. एंड आज की वीडियो में इतना ही कवर करते हैं. ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा. कोई डाउट आता तो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, मैं क्लियर करता हूँ आपको. ओके, आज के लिए इतना ही. बाय.